Assalamu alaikum to all the participants and the viewers who are watching us live on our Rehan AI Teachers Institute's Facebook page. Tonight is 8th August 2025. The time is 5 minutes past 9 p.m. UTC plus 5. According to Pakistan Standard Time, myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehanpur Online Academy and facilitator at Rehan AI Teachers Institute, teacher training bootcamp for 2 months. Let's practice the meditation first and then we'll move forward towards today's task. So, Nasimullah bhai, please play the meditation video. आज आपका लैपटॉप बहुत अच्छा है भाई, आज आपका सही वाला बैकग्राउंड अप्लाई हो गया मैंने सिस्टम चेंज किया मैम। इसीलिए One, did you know that you are meant to receive so many happy moments, blessings, miracles, whatever name you wish to give it today? So let yourself get into whatever position feels best. Gently closing your eyes if you wish, and tuning into breath and body. Inviting yourself to take a nice deep breath in, feeling the air enter slowly, tuning into how your muscles move as you breathe, holding the breath नसीमुल्लाह भाई momentarily आपकी whenever मेडिटेशन the वाली वीडियो की tension स्क्रीन should शेयर up. नहीं है अब सही सही नहीं अब कंटिन्यू कीजिएगा जी कंटिन्यू कीजिएगा And releasing long and extra slow when you're ready. Dropping into this moment. And then letting the breath return to however it wishes to flow. Invite yourself to release and relax the muscles in your shoulders, as well as in your face and jaw. Saying to your body as it's waking up this morning, "Hello, dear body. Welcome to another beautiful day. Thank you for being here with me. Thank you for being. What blessings, miracles, and joy shall we welcome in today?" Just relax into this. As you feel perhaps a spark of joy entering somewhere into your body. And see how your body relaxes into this. You know how there are some people who just seem to have good thing after good thing happen. What if that can be natural for you? What if there is an even greater perspective that exists for you? And what if you deserve to line up with that? Perhaps even just slightly more, or in an even grander way than that, letting whatever way is be perfect for you.
lining up with more blessings and miracles today. Expecting them just as you expect your very next breath. Waiting for you to breathe it in, darling. Your breath is always there. What a miracle. Stay connected to this feeling as long as you wish. And when you're ready, come out of this practice nice and slowly. Gently blinking your eyes open only when you're ready. Okay, participants, thank you so very much for practicing this meditation video. And okay, let's talk about yesterday's task. कल के टास्क के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो कि कोई चैलेंज रहा, प्रॉब्लम रही, और कोई भी अगर आपके सवाल है किसी चीज के बारे में तो आप पूछ सकते हैं. Then we'll go for today's task. Yes, anybody, anything that you want to discuss or address in the class? No? Someone raised the hand. जी मसीरा. वो मैंने ये पूछना था कि जो लिंक्डइन है ना, उसमें मैं अपना आईडी कार्ड देती हूँ तो वो उसको स्कैन करने के बाद ये कहता है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है. तो मेरा आईडी कार्ड हालांकि वो है चिप वाला है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो पर्सोना है उसका वो उसको पता नहीं क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करता, मुझे ब्लू टिक नहीं मिलता. आप मुझे गाइड कर सकते हैं उसके लिए? आपको ब्लू टिक नहीं मिलता, ये क्या आपने? मतलब वो जो बैज होता है, जो कहते हैं कि वेरिफिकेशन का बैज है, आपको लें अगर आप इसको वेरीफाई करें, ये कह रही हूँ. सॉरी, मैंने वो दूसरी बात कर दिया. अच्छा. नहीं, कोई मसला नहीं है. आप आपकी जो भी बात है आप क्लियरली कह सकते हैं. अब आप मुझे दोबारा बताइए कि आप वो किस लिए अपना जो आईडी कार्ड है वो शेयर करिए लिंक्डइन को. लिंक्डइन की प्रोफाइल पे नीचे लिखा नहीं हुआ था कि आपको वेरिफिकेशन का बैज मिल सकता है अगर आप अपना आईडी कार्ड पर्सोना से शेयर करें? ये जब मैं करती हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा किया है, काफ़ी टाइम गैप के बाद भी किया है, और मेरा आईडी कार्ड वो स्कैन कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो मुझे कहता है कि इट सीम्स लाइक इट्स यू हैव नो पासपोर्ट. तो जी. हाँ, तो पासपोर्ट तो नहीं, मैं आईडी कार्ड देती हूँ तो वो नहीं होता. तो अब इसका क्या हल है? Right. अगर हमारी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है तो फिर हम ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाते हैं ना लिंक्डइन पर. बिल्कुल हो जाते हैं. इरम, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि या तो आप उसको खरीद लें, वो अपनी सब्सक्रिप्शन बेचता है. अगर आपको ब्लू टिक लेना है ना तो उसके साथ आपको अपना अकाउंट ऐड करना पड़ेगा. आप अपना कोई भी अकाउंट जो कि वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड पे बना हुआ है आप उसको ऐड करेंगी और वो सर्टेन अमाउंट आप उसको पे करेंगी पर मंथ, तो वो आपको ब्लू टिक देगा. दूसरा ये है कि आप अपने कनेक्शन, जिस कहते हैं ना ऑर्गेनिक कनेक्शन है मेरे, जैसे कि मैंने खुद मेहनत से करके ये सब कनेक्शन कनेक्ट किए. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने दो नंबरी लगा के किसी भी तरह से जो है. आजकल एक ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर खरीद सकते हैं. ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं होता. वो जैसे ही आप खरीद तो लेते हैं और आप वो जो एक काउंटडाउन है वो पूरा हो जाता है आपका, लेकिन जैसे ही वो काउंटडाउन पूरा हो जाता है और आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाते हैं और जब वो एल्गोरिथम चेक करते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि आपने ग्राफ गिर खुद, जाता है. क्योंकि उनको बहुत अच्छे से आपके एल्गोरिथम्स की रीडिंग मिल जाती है कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब कहाँ थे, 6 मंथ्स की क्या प्रोग्रेशन रही, 3 मंथ्स की क्या प्रोग्रेशन रही है, और आफ्टर ईयर क्या प्रोग्रेशन रही. तो जब भी हम किसी चीज को बाय करने की तरफ जाएंगे सब्सक्राइबर या सोशल मीडिया की तरफ, तो वो हमें इलीगल ही उसको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें कभी भी दोबारा वो चीजें नहीं मिलती.
तो जो लिंक्डइन है और फेसबुक दोनों ये आपको पेड ब्लू टिक देते हैं, लेकिन उसकी सर्टेन फीस होती है, आपको चार्ज किया जाएगा उसका पर मंथ के हिसाब से। आप पर मंथ वो चार्जेस पे करें और आप उसको बाय कर लेंगी। और अगर आप अपना पहले उसको आप फी पे करेंगी, वो जो सब्सक्रिप्शन है ना आपकी ब्लू टिक की, उसकी फी पहले पे करें और उसके बाद फिर अपनी वेरिफिकेशन पे आए। अच्छा, तो ये जो हाँ जी, आईडी कार्ड मांग रहा होता है तो फिर ये जो उसका नोट वो करते हैं मेरी बहन, ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि वो चाहता है कि अगर आपको अपने आप को ऑथेंटिक करवाना है और बिफोर द टाइम करवाना है, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर लें और ग्रेजुअली एंड स्लोली उसको ऑर्गेनिकली ग्रो होने दें अपनी प्रोफाइल को, तो ऑटोमेटिकली से कहते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग आपके साथ खुद इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको ब्लू टिक की फिर जरूरत नहीं रहती है। आपके कनेक्शन मैटर करते हैं आपके लिए, तो वो आपको टाइम लगता है। प्लीज तो 2 महीने के अंदर ये बिल्कुल नहीं समझे कि दो नहीं महीने नहीं के अंदर आपके इसमें 5,000 या 6,000 सब्सक्राइबर बन जाएंगे। जो- इट टेक्स टाइम। आप अगर 2 महीने में 500 कनेक्शन भी पूरे कर लेते हैं, इट्स सच अ बिग अचीवमेंट कि आपने 2 महीने में 500 कनेक्शन का टारगेट भी पूरा कर लिया। ठीक है, नहीं क्योंकि नहीं, मेरी जो प्रोफाइल है ना वो 2 साल पुरानी है और मेरे कनेक्शन जो है 600-700 हैं और मेरे फॉलोअर्स भी हैं। तो मैंने अभी 2 महीने में मतलब तेजी से चीजें नहीं वो कर रही नहीं, मैं मैं तो ये नहीं कह पहले रही, से उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। आपको टारगेट लिए नहीं कहा, मैंने सबके लिए कहा है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए। अब देखिए, 2 महीने पहले या 9 साल पहले या 2 साल पहले की पुरानी प्रोफाइल है, लेकिन वो डेड था। आप कुछ अपलोड नहीं कर रहे थे, आप उसको यूज नहीं नहीं, कर मैं रहे उस थे। पर कर रही थी काम, थोड़ा अच्छा कर अच्छा। रही थी, लेकिन मैं रोज वहां जाती थी, कमेंट्स हम्म भी करती थी, लोगों की चीजें देखती थी, शेयर करती थी, कुछ ना कुछ अपलोड थोड़ा करती थी, लेकिन हम्म, मैं अपने रोज के 10 मिनट लिंक्डइन को देती थी। सही, ठीक होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप उसको ऑर्गेनिकली ग्रो होने दें। आप इसके पीछे नहीं जाए कि आपको जो है वो ये ब्लूटिक लेना है, इसको नहीं छोड़ नहीं, दें। मैं और ये समझी थी कि शायद हमें जो लिंक्स जो हैं वो हम जब आईडी कार्ड से इसको वेरीफाई करते हैं तो फिर हम मतलब ये जो लिंक्डइन है प्रोफेशनल है, तो ये मतलब यानी कि एक प्रोसेस है जिसका मेरा स्टेप रह गया था। मैं ये नहीं चाह रही थी कि भाई मैं नहीं नहीं, ये चीजों को कोई गेन स्टेप कर लूं। नहीं। हाँ, ये अच्छा, कोई मैं स्टेप ये नहीं है, समझी थी, आपके सारे इसलिए चीजें पूछ रही थी कंप्लीटेड है। आपसे। यू जस्ट वेट फॉर ठीक इट है। और ये इंशाल्लाह खुद ही हो जाएगा। ज्यादा फोकस ये रखिए कि आप जिनको भी ऐड कर रहे हैं ना उनके साथ इंटरव्यूज करना शुरू कर दें। और जब वो आपके साथ इंटरव्यूज करेंगे और आप अपना कंटेंट लिंक्डइन पे पब्लिश करेंगे, तो सामने वाले को खुद ही ये जेन्युइन प्रोफाइल लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके लोग कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और वो एक सर्टेन अमाउंट थाउजेंड्स में अगर आपके पास जो कनेक्शन है वो पूरे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लू टिक मिल जाएगा, फिर ब्लू से ऑरेंज में भी आप चले जाएंगे। अच्छा, मैंने आपसे पूरी बात पूछनी थी कि ना ये जो टेप्टा के बहुत सारे वो स्टूडेंट हैं जो कि मुझे लिंक्डइन पर अप्रोच करते हैं, तो जो उनके पीछे बैनर जिस तरह हमारा एआई टीचर इंस्टीट्यूट है ना, उनका टेप्टा का वो लगा होता है, तो मेरे हम्म, काफी सारे उनसे लिंक बन गए हैं। तो अगर जो मेरे वो लिंक्डइन पर ही बने हैं तो अगर मैं उनसे इंटरव्यू शुरू कर दूं, कर और लें। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं जैसे हमारी आप कहती कि यहाँ नया टीचर्स इंस्टीट्यूट की इस ट्रेनिंग बूट कैंप ट्रेनिंग का हिस्सा है, आप करें इंटरव्यू, जरूर करें ताकि उनको बोलने का मौका मिल जाए, वो शायद इसी तरह बोल ले। आप बोल रहे थे कल के फॉरेन इंटरव्यू करने हैं आपने, तो इसलिए मैं और आपसे मैंने पूछ रही आपसे हूँ। आपको सजेशन दी थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इनफ आपने इंटरव्यू कर लिए हैं, 15 to 20 इंटरव्यू आपके हो गए हैं, तब आप जरा फॉरेन सीरीज को स्टार्ट कीजिए, तो फिर आपको समझ आएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि फॉरेन सीरीज ये ना समझिएगा कि आज मैंने मैसेज किया कल इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि आपका अगर एक हफ्ते में भी फॉरेन इंटरव्यू होता है, देन गो फॉर इट। क्योंकि सबसे बड़ी बात फॉरेन की ये बात है, पाकिस्तानियों ने आपको वैसे ही माइंडसेट देना है जैसे आपके पास है, आपके गली के लोग हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, वैसे ही पाकिस्तानी माइंडसेट है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है उन लोगों में। ठीक है, मैं सिर्फ ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि 80% ट्रेंड है। 20% एक्सेप्शनल्स हैं या पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो 20% इतने एक्सेप्शनल है कि वो आपके हाथ ही नहीं आते। सो हम 80% की बात करेंगे जहां पे हमने ज्यादा सरवाइव करना है, जिन लोगों के साथ हमारा डे टू डे इंटरेक्शन रहना है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करी थी कि आप फॉरेन से कनेक्ट हूँ, क्योंकि फॉरेन वाले जो है वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की गाइडलाइन दे देंगे, फॉरेन वाले आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करवा देंगे। और ये जो सर रेहान कहते हैं ना कि आपका अपने घर पे बैठ के दुनिया से कनेक्शन हो जाएगा, तो दैट यू विल एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस, फिर आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर लोगे। इस मैंने ये पूछना था कि जो बहुत सारे ऐसे हैं पाकिस्तानी जो कि बाहर चले गए हैं, बाहर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो भी वो भी फॉरेनर्स फॉरेन में नहीं है काउंट होंगे? मेरी बहन। पाकिस्तानी जहां से जो जाता है ना, वो उसकी मेंटेलिटी उसकी सोच वहीं की वहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल।
ठीक है, क्योंकि वो लोग इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि हमें भी वहां जाके अपने कनेक्शन बनाने हैं। वो नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी बेचारे परेशान है, जो यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई है ना फैमिली, वो हर एक महीने बाद फोन करके पूछती है, हाँ फलां घर का जो बिल है वो फट गया है, फलां जगह घर लेना, उसके पैसे भिजवा दो। और वो इतना तंग करके रखा हुआ है उन लोगों को बेचारों को बाहर के, वो बेचारे इन्हीं के सारे जो है ना वो शौक पूरे करते करते अपनी चक्की में पिस रहे हैं। और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी अपनी ग्रोथ पे लगा सके, या अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जा सके, या अपने नेटवर्क को ग्रो कर सके, ताकि वो अपने लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, और जो पाकिस्तान में पीछे फैमिली रह गई है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं बहुत कम है, जैसे अतीक रहमान साहब हैं, ऐसे वाले लोग बहुत कम आपको मिलेंगे। जो नॉर्मली पाकिस्तान से जितने भी लोग जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज पे गए कि उन्होंने वहां बैठ के कुछ अर्न करना है और पीछे बैठी हुई फैमिली को सपोर्ट करना है। तो जो वहां पे एटलीस्ट कोई 20-25 साल से हैं, जिनका रेजिडेंस जो पीरियड है वो 20 साल से ज्यादा है, 25 साल से ज्यादा है, उनका नेटवर्क आपको मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने वहां पे जॉब भी की हैं, उन लोगों ने वहां पे बिजनेसेस भी किए हैं, उन लोगों ने वहां पे डिफरेंट कम्युनिटीज भी ज्वाइन की हैं। फिर जहां पे वो जॉब करते थे उन कम्युनिटीज के साथ भी वो एड ऑन रहे, फिर आफ्टर वो जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है रिटायरमेंट के बाद भी वो उन लोगों से कनेक्टेड है, जिनमें ह्यूस्टन के मेरे को ये अल्हम्दुलिल्लाह से 12 लोग कनेक्टेड हैं। और वो 12 के 12 माशाल्लाह से हैं तो बहुत सीनियर सिटीजन, लाइक 60+ है। तो आप समझ सकते हैं उनमें कोई यहाँ पे सर्जन रह चुके हैं आगा खान हॉस्पिटल कराची में, और ऑर्थोपेडिक थे वो। कुछ जो है वो बिजनेस में बहुत अच्छे रहे, वहां जाके भी वो ये जो प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है रिलेटेड है वहां पे, वो पिछले 25 साल से वहां पे यही काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों का वहां पे कनेक्शन बहुत ज्यादा है, उनके नेटवर्क ग्रो किए, जिन्होंने अपने आप को भी वहां पे स्टेबल कर लिया और अपनी चीजें भी एक्सपैंड करते गए। तो जो लोग अभी बिल्कुल न्यू है, 5 साल 10 साल हुए ना, उनका कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए बेहतर ये है कि आप और ऐसे लोग ना अल्टीमेटली, ये उन्हीं की अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये मैं नहीं बता रही। ये जब मैंने उनसे कनेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि हमारे अपने ही लोग बाहर आके भी हम हमारे टांगे खींचने से बाज नहीं आते, लेकिन जब भी हमने यहाँ के नेटिव लोगों के साथ काम किया है हमने बहुत कुछ सीखा है। और वो बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जो कहते हैं ना कि बाहर वालों पर ट्रस्ट ना करो, लेकिन हम वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट ना करो। बाहर जाके कभी भी किसी पाकिस्तानी के बाद में, या पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि बिजनेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करो, कहीं कहीं भी उसके साथ शराकतदारी नहीं करो। हाँ, एक रिलेशन है आपका, एक अच्छा रिलेशन रखे, दैट्स इट, ये बात। अच्छा मिस मरियम, ये है कि जैसे आपने उस दिन बोला कि आप जैस्मिन के कनेक्शन में से भी कनेक्शन बना सकती हैं, या आप किसी और जो आपके फॉरेनर आ जाए आगे उसके कनेक्शन से कनेक्शन बना सकती हैं। अगर हम वैसे कनेक्शन बना लें लेकिन वो सर रेहान जो है उनके साथ कनेक्शन ना हो, और भाई हम्म। यानी कि तो फिर भाई यानी कि क्योंकि हमारा जो भी टारगेट है वो ये है कि अपने म्यूचुअल फ्रेंड और कनेक्शन उनके साथ उनके जो है वो हमने लेने हैं, तो फिर ये कैसा रहेगा? डिपेंड करता है ना मैं, कि आपके साथ जो आप कनेक्शन बना रही है वो आपके वाला या आपके गोल से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ऐड कर लेते हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आपका क्या लेना देना सिक्योरिटी से। आपको तो एजुकेशन के साथ कनेक्ट करना है ना। आप एजुकेशन वाली हैं तो आप प्रिंसिपल्स, टीचर्स और इस तरह के लोगों से कनेक्ट हो जो कि लीडरशिप क्वालिटीज में, स्कूल मैनेजमेंट में रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। आप उनसे कनेक्ट हो तो आपको फायदा होगा ना। आप अगर जो है अदर देन दिस किसी बिजनेस वाले के साथ कनेक्ट कर जाती हैं, या किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट करती हैं जो कि ब्यूटिशियन है, या कोई कटलरी के बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो आपके लिए तो फायदेमंद नहीं है ना, ये बात। बाकी म्यूचुअल फंड तो आपने पूरे करने ही करने हैं, लेकिन अदर देन म्यूचुअल फंड भी अगर आप अपना कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी मिस गुलशान, आपने हैंड रेज किया था। जी मिस मरियम, मैं आपने टास्क सेंड किया था तो वो मैं बना रही थी रिमाइंडर, तो हम्म। वो बन गया, लेकिन वो पता नहीं क्या एरर दे रहा है। जब मैं उसकी कॉपी लिंक पे करती हूँ क्लिक, तो वो आगे से ना मुझे कह देता है कि ये ऑलरेडी मैसेज जो है, ये पता नहीं इसको क्या हुआ पहले कहीं। स्क्रीनशॉट दे लेके मुझे शेयर कीजिएगा। जी ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ किसी और का भी हैंड रेज था? नहीं। ओके पार्टिसिपेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोडिंग टास्क फर्स्ट। पहले हम कोडिंग का टास्क ही कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें कि हमने आज रिमाइंडर ऐप बनानी है। तो हम रिमाइंडर ऐप बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे चट।
और आज के टास्क भी बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे बहुत थोड़े से टास्क हैं, जिसमें एक अपने इंटरव्यू करना है, टेड टॉक देखनी है, और कोडिंग का एक टास्क है जो कि आज हमने कंप्लीट करना है, रिमाइंडर ऐप का। और फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने हैं हमने फेसबुक पे, सरेहान वाला के 5 म्यूचुअल फ्रेंड्स को ऐड करना है। दैट्स इट। ये आपके आज के टास्क है। ठीक है, तो ये हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और पनिशमेंट्स मैं कल भी याद दिलाया था, मैं आज फिर याद दिला रही हूँ। वी हैव जस्ट 3 वीक्स आफ्टर दिस। आज हमारा 5th वीक भी कंप्लीट हो गया और आपके 3 हफ्ते बाकी रहेगी। तो 3 हफ्ते में का मतलब है कि जैसे ही आपके 3 हफ्ते पूरे होंगे, उसके बाद हार्डली 2 से 3 दिन का मार्जिन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अपनी गूगल शीट्स को अपडेट रखिए, अपने टास्क को प्रॉपरली अपडेटेड रखिए। अगर कहीं कोई भी चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसी टाइम पे मैसेज करके या कोई भी अगले दिन क्लास में से रात को पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, ताकि आपके देन एंड देयर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए और आपके प्रॉपरली हर चीज अलाइन रहे। जी जावेद भाई। मिस मरियम, मैंने आपको जी भेज दिया मैम। स्क्रीनशॉट। अस्सलाम वालेकुम। मैं देखती हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा जावेद भाई। जी मैम, आज का जो आपने एक मैसेज दिया है टास्क का, तो इसमें है मैम ये वॉच द टॉक, क्रिएट अ रिव्यू वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना? बिल्कुल। हाँ मैम, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, इसका थोड़ा मतलब ये बता है दीजिए। कि वो जो यूट्यूब का लिंक है ना आपके पास, 1 मिनट। जी है मैम। जी है। मिस गुलशन, इग्नोर इट, वो आपको कुछ नहीं कह रहा। आप नीचे जो पब्लिश एंड कॉपी का लिंक आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके, और वहां से फिर आपको दोबारा ब्लू कलर का एक वो मिलेगा लिंक, उसको कॉपी कर ले और इसको पब्लिश कर ले। दैट्स इट। ठीक है जावेद भाई, ये जो लिंक भेजा गया है ना, इसका मतलब ये है कि आप पहले अपने वीडियो देखनी है, फिर उस वीडियो को आपने रिकॉर्ड जी। करना है। एक आप हिंदी में बनाएंगे और एक आप इंग्लिश में बनाएंगे। ठीक है, हिंदी में उन लोगों के लिए जो कि आपके दोस्त सारे हिंदी में आपको फॉलो करते हैं उनके लिए, और इंग्लिश में उन लोगों के लिए जो कि आपको अदर देन हिंदी आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके साथ ये सारी चीजें देख रहे हैं आपके प्रोफाइल पे, तो इंग्लिश में उनके लिए बनाना है। ठीक है, और इंग्लिश वाले कंटेंट को आपने अपने मैम लिंक्डइन इसको पे भी कैसे, पोस्ट। मैम इसको कैसे रेडी करेंगे? जैसे कि पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद में फिर चैट जीपीटी पे जाके और इसको वीडियो का लिंक शेयर करके और उसको बोलेंगे कि हिंदी में मतलब स्पीच रेडी कर दो और एक इंग्लिश में, है ना? उसके हम्म। बाद में फिर वो जो याद करके या फिर उसके हिसाब से मैंने वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे और फेसबुक पे, हाँ हाँ, सही सही। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे फेसबुक और पे, लिंक्डइन पे। हाँ सब पे आपने पोस्ट करनी है। ठीक है, और इंस्टा भूलना पे। नहीं है कि आपने टेड स्पीकर को भी टैग करना है। अच्छा मैम। जी मैम। आपने जो स्पीकर जिसको सुना है ना, उसको भी टैग करना है वीडियो बनाने के बाद। अच्छा मैम, अब आप, उसको भी हाँ टाइप अब करना आप है। पहले पहले कोडिंग का टास्क कंप्लीट कर लें, जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपने पहले कोडिंग का टास्क पूरा करना है, तो उसको पूरा कर लें, जो कि है आज की रिमाइंडर ऐप। तो वो रिमाइंडर ऐप बनाइए। जी। ओके जबरदस्त मिस लुबना, कोडिंग टास्क डन। एंड नेटवर्क इशू को डिस्कनेक्ट करने के, हाँ आसिफ भाई बिल्कुल आप ऐसे ही हो रहे हैं, बार बार आपके नेटवर्क का काफी इशू है। कोई बात नहीं, अब अपने टास्क कंप्लीट करें बस। ओके।
अच्छा मिस मरियम, मेरा एक सवाल था आपसे। जी जी पूछे। आज मैं जो बुक है वो उसको मैं ना देख रही थी, जो आपने हमें बुक भेजी हुई है। तो मैं हम्म। उसमें ना चीजें जो हैं वो एक तरह से पाइल अप कर रही थी कि मेरा कौन कौन सा टास्क रहता है या इस तरह से करके। तो मैं ना सॉन्ग डिस्क्रिप्शंस देख रही थी सारी की सारी। वो हम्म। बनते हैं जो बुक के अंदर ऐड किए हुए हैं ना, वो है 17 सॉन्ग्स हैं। और हम्म। उसमें से दो वैसे ओरिजिनल सॉन्ग जो हैं वो बनते हैं 15। दो गाने हम्म। जो हैं वो जो है ना वो रिपीट हुए हैं। एक तो वो मुल्तान और लाहौर वाला है शायद, दूसरा पता हाँ नहीं जी। एआई का था या हमजा का था। इनमें हाँ से जी। दो जो वो रेपिटिशन में आए हैं। तो जी। वैसे बनते हैं वो 15 गाने हैं। तो वो जो जो रेपिटेशन में आए हुए हैं, क्या उनकी जगह पे आपने हमें कोई और टॉपिक देना है या टोटल 15 ही रहेंगे? नहीं, मैं वो टॉपिक दूंगी, लेकिन यही बात लास्ट पे आपके साथ शेयर की जानी थी, इसीलिए मैंने अभी ये बात नहीं बताई थी। हम इसके लिए इंशाल्लाह आखिर में, आप जो रिपीटिशन है हमारे दो ये वाले टास्क रिपीटेड है, और एक आखिर में जाके आपको टेड टॉक भी मिलेगी। तो उसके ऑल्टरनेट में ये तीन टास्क आपको एक्स्ट्रा बता दिए जाएंगे। तो वो आपको उसका प्रॉपर टाइम भी मिल जाएगा, और ये काम भी, टेड टॉक तो उसी टाइम पे रिप्लेस होगी। लेकिन जो आपके दो आपके फेसलेस है, उनके मैंने अभी नहीं शेयर किया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम लास्ट में करें। अच्छा, होपफुली मेरा जो है ना नेक्स्ट वीक में मेरा लैपटॉप आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। तो मैं मैं इस पे ना सुनो एआई पे मैंने गाना बनाया था। तो वो डाउनलोड तो हो गया, लेकिन वो कैनवा पे अपलोड नहीं हो रहा मुझसे। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं 2-3 मेरे ये जो 3 गाने रहते हैं ना, रिव्यू तो मेरे सारे हो गए हैं, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो अपलोड भी हो गए हैं। तो सिर्फ एक जो मेरे सेशन जो जैसी बात है, लैपटॉप की डिमांड है कि मेरे वो जो एआई के सेशंस हैं वो रहते हैं करने वाले, वो इंशाल्लाह ताला वो तो मैं कर लूंगी एक दिन में, सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो मैं इन 2-3 दिनों में ना ये मैं इसको कंप्लीट करना चाह रही थी कि ये जो 3 गाने मेरे रहते हैं ना बनाने वाले, ये मैं बना लूँ। लेकिन मैं आज मैं ट्राई करती रही हूँ, तो वो मेरे मुझसे ना वो अपलोड फेल ही आ रहा था कि वो उस पर नहीं हो रहा था। तो जब ये क्लास थोड़ा सा हो जाएगी तो इस पर जितना थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा अगर पॉसिबल सही। हुआ तो। आप सेल फोन से कर रहे थे? जी जी, सेल फोन से कर रही थी ना, सेल फोन से। अच्छा, तो सेल फोन में मैम प्लीज शॉर्ट हेल्प। जी जावेद भाई, आप बताइएगा आपको क्या हेल्प चाहिए। मैं सिर्फ शायद बस 1 मिनट दीजिएगा। माय बॉट जी जी। इज नॉट वर्किंग ऑन ऐप। माय बटन इज नॉट वर्किंग ऑन ऐप। कौन सा बटन नहीं काम कर रहा आपका मिस इरम? अब वो जो है ना बटन, क्या उसे कहते हैं, ऐड रिमाइंडर वाला, वो काम तो नहीं कर रहा। तो आप क्लाउड को फिर प्रॉम्प्ट दे कि ये फंक्शनल नहीं है, इसका ये बटन इसको फंक्शनल कर दे, वो बना देगा आपके लिए। ठीक है, मैम ये बता डिलीट रही भी हूँ। नहीं हो रहा। एक मिनट, क्या कहा इशार? मैम मैंने रिमाइंडर दे दिया लेकिन वो अब डिलीट ही नहीं हो रहा वापस। मैंने उसको 2-3 दफा बोला फिर भी नहीं हो रहा। क्या डिलीट नहीं हो रहा? लाइक जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रिमाइंडर दिया था ना, अब वो डिलीट नहीं हो रहा वापस। स्क्रीन शेयर करें। ओके मैम। जी मिस लैला, आपका भी कोई सवाल है? 1 मिनट दीजिएगा अगर आपने स्क्रीन शेयर करनी है तो। मैम ये देखें, डिलीट कर रही हूँ एक नहीं हो मिनट। रहा। तो कोई बात नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? क्लाउड को लिखो प्रॉम्प्ट वापस कि ये डिलीट फंक्शन बटन जो है वो फंक्शनल नहीं है, इसको फंक्शनल कर दो, तो वो बना देगा। डिलीट बटन इज नॉट फंक्शनल, make it functional for me, is not working and make it functional for me, is not working and make it functional for me। बना दे, ठीक है, अब बना देगा आपको। जी मिस लाला, आपके क्या सवाल है? जी मैम, मैं ना इसी सॉन्ग की बात करी थी, रिपीट का जो अभी एक मैम ने बात की। मैम मैंने तो उसको ये सोच के
उसको बना लिया कि चलें एक और अच्छा एडवांटेज मिला है, इस पे पहले काम किया हुआ जिस चीज पे, उसको एक नई शक्ल देने का मौका मिल गया है। तो मैंने तो दोनों सॉन्ग को डबल खुश होके किया और डिफरेंट वे में करके सेव किया है। तो अगर चलें ठीक है, अब आपने नई राय दी है कि एक मतलब ये आपका पहले से था माइंड में कि मैं एंड में ऐड करूंगी, चलें जब आप ऐड करेंगी तो फिर मैं वो फिर बना लूंगी। बट मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा इसके पीछे कोई ना कोई आपकी थिंकिंग होगी ऑब्वियसली। इतनी बुक बनाता है बंदा तो जो बना रहे होते हैं कोई ना कोई जरूर हिकमत अमली होती है इन बातों में। कभी कभी होता है किसी वर्ड में तो गलती हो सकती है, एक दो अल्फाज को कुछ ज्यादा अल्फाज, लेकिन प्रॉपर जब इस तरह से एक दिया जा रहा है कोई ना कोई उसमें ऑब्वियसली हिकमत अमली होगी। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। जी ईशान, हो गया ये फंक्शनल? मैम नहीं हो रहा, आप देख रही हो कि उसको मतलब थोड़े से और टास्क रिमाइंडर दो ताकि वो शायद हो जाए फिर। हाँ, आप 1 से 2 बार प्रॉम्प्ट दीजिए और वो आपके लिए कर देगा चेंजेस। जी जावेद भाई। मैम रिमाइंडर का बटन काम नहीं कर रहा है, एक स्पीकर वाला आपका भी एक्टिव नहीं कर रिमाइंडर, रहा। जी आप टास्क दोबारा ऐड से नहीं हो रहे हैं। उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, शायद वो आपके लिए भी वर्केबल हो जाएगा। जैसे अभी सीरम भी यही बात कर रहे थे ना, बार बार प्रॉम्प्ट देने से ये ठीक होगा। आप उसको जितने बार वो आपका जो प्रॉब्लम आता है उसको वो प्रॉब्लम बताते जाए, प्रॉम्प्ट देते जाए, वो ठीक कर देगा। अच्छा, ओके। मिस गुलशन, सबसे पहले तो आपने जो गाना बनाया है ना, आप उसको ये देखना है कि आपके सेलफोन में डाउनलोड हो गया कि नहीं हुआ, सुनो डॉट एआई से। अब जब वो डाउनलोड हो जाता है ना, तो मोबाइल फोन से उस गाने को अब आपने अपलोड पे क्लिक करके उसको आप वापस अपलोड करना है। क्या यही प्रोसीजर फॉलो कर रही है या थोड़ा चेंज है? मैं अपलोड पे जाके ना तो अपलोड फाइल्स पे जाती हूँ, तो वहां से ना जो चीजें शो हो रही है ना, फिर मैं माई डिवाइस में आती हूँ। माई डिवाइस में वो गाना पड़ा हुआ है, तो हम्म। वहां से आगे वो जब कैनवा पे आ जाता है ना, तो कैनवा पे जब वो शो होता है तो नीचे उसके लिखा आ जाता है फेल। मतलब अच्छा, वहां से अपलोड हो जाता है और आप कैनवा पे आके उसकी फेलिंग आ रही है, आप जो जब उसको डायरेक्शन देती हैं वो वहां से रीडायरेक्ट हो जाता है। हाँ जी, वो फेल क्यों, कैनवा फेल पे लिख आके वो देता है फेल उसको। क्यों? अच्छा, चले क्लास के बाद देखती हूँ मैं, आप मैम स्क्रीन कुछ ये शेयर हो सकता कीजिएगा। है ये हाई डेफिनेशन बहुत ज्यादा कर रही है, उसका साइज बहुत बढ़ जाता हो जिसकी वजह से डाउनलोड ही ना होता हो, ये भी हो सकता है इसको। चलें ठीक है नसीमुल्ला भाई, एक और चीज ये भी हो सकती है, तो हम इंशाल्लाह भी क्लास के बाद देखते हैं, ठीक और है? मैम जी मैम जावेद। जी सर। ये ना मिस गुलशान को मैंने इंटरव्यू दिया था और वो मैं अब डाउनलोड करी, वो मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रहा, इवन के बाकी सब का डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, मिस गुलजार वाला नहीं डाउनलोड हो रहा? नहीं, और मैम मुझे ये भी नहीं पता कि उसे अपने पेज पे कैसे पोस्ट करना है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप स्क्रीन शेयर करो, मैं भी करा देती हूँ। जावेद भाई, आप 1 मिनट दे मुझे, मैं आपको सुनती हूँ फिर, बस 1 मिनट दीजिएगा। जी ईशान, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। मैम एक चीज कहना चाहती हूँ, जब कोई जी। इंटरव्यू लाइव जो है ना वो हम शेयर करते हैं या ना भी करें, और वो वीडियो पब्लिक ना हो, प्राइवेट हो, तो फिर वो डाउनलोड नहीं होती। जस्ट फ्रेंड्स पे हो, सेटिंग चेक कर लें, अगर वो जस्ट फ्रेंड्स पे है तो फिर नहीं होगी, वो पब्लिक होगी तो फिर डाउनलोड होगी। क्योंकि ये मेरा भी इशू आ रहा था, फिर मैंने चैट जीपीटी को देके पूछा था जब, तो उसने मुझे यही बताया था। फिर जब उसको पब्लिक किया सबको, तो फिर सब डाउनलोड हो गया, नया पुराना सब कुछ। ये एआई के सेक्शन भी मिस लुबना, जी जी, सारे सारे एआई के लाइव। सेक्शन जो है वो सारे मेरे डाउनलोड नहीं हो रहे थे। मैं उसको ना डाउनलोड कर रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं ये डिलीट कर दे इससे पहले कि मेरा लैपटॉप और ये चीजें डिलीट डिलीट हो जाएं। तो मैं उनको ना कर पब्लिक रही थी कि करके मैं सेटिंग चलिए फिर उसको। डाउनलोड कीजिएगा, फिर हो जाएंगे। चले मैं मैम सिर्फ मिस पब्लिक मरियम, आपने मुझे ये भी एक दफा बताना है, फिर एंड में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा जब ये क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, ओके जी। मैम पब्लिक करके कैसे लगाना है? पब्लिक अभी सेटिंग्स में बताते जाके। हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ना, फिर पता चलता है। मैम मैं 5 मिनट तक कर लूँ, बस मेरा टास्क हो गया उसको मैं पहले पोस्ट कर लूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जावेद भाई। सलेमान भाई, कैमरा ऑन कर दें। शफीक भाई, आदम भाई, मिस लैला। जी जावेद भाई।
जी जावेद भाई, आप माइक खोल के बोलेंगे तो समझ में आएगी। मैम मैं बोल रहा था कि जो ऐड रिमाइंडर है, ऐड न्यू रिमाइंडर, इसमें हाँ मतलब जी एक कमांड क्या देंगे, कमांड देना होगा ना इसको, तो क्या कमांड देंगे इसमें? जावेद भाई, आज देखिए वो जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है ना, उसके साथ सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करना होता है, ठीक है। आप उसको लिखें और वो आपको बना देगा। आप उसको जितनी आसान अपनी चाहे या हिंदी में भी लिख के दे देंगे ना, तो वो मैम हिंदी भी रिमाइंडर समझ रेडी हो गया है, रिमाइंडर रेडी है मेरे वापस पास। हो गया। फिर क्या तो मसला आ रहा है? इसको चेक करना होगा ना कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो वो आप ऐड कीजिए ना अपने रिमाइंडर। सॉन्ग क्रिएशन, मतलब ये जो ऐड न्यू रिमाइंडर, मतलब टास्क टाइटल में क्या डालेंगे, इसमें कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी। हाँ जी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में? डिस्क्रिप्शन जब आपने पहले देखिए, मेरी बात सुने, फंक्शनल के लिए ना आपने इसके अंदर कोई भी ABCD टास्क ऐड करके देखने होते हैं कि क्या ये ठीक चल है। रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। हाँ मैम, वो चल भी रहा है, करके डिलीट भी हो रहा है, चल भी रहा है, डिलीट भी हो रहा है। जबरदस्त हो गया। अब आप पब्लिश पे क्लिक कीजिए। पब्लिश के बाद पब्लिश एंड कॉपी का ऑप्शन आता है, उस पर वो क्लिक मैम करें। मैं कर अब लूंगा, सिर्फ मुझे ये पूछना था कि ये मैंने वर्क कैसे करेगा, इसको मेरे को पता नहीं है, मतलब ये वर्कर ये- वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, वो जानना था मुझे। आप स्क्रीन शेयर करें। ठीक। जी मैम जैसे ये ऐड न्यू रिमाइंडर है, ये मैंने यहाँ पे सॉन्ग क्रिएशन डाला था और फिर मैंने डिलीट करके दोबारा डाला तो हो रहा है ये, मैंने ये देखिए ठीक एडिट है। भी हो। तो बस यही देखना है ना जावेद भाई, बस इसी को कहते हैं वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वर्क कर रहा है। आपने ऐड किया, ऐड भी हो रहा है आपका रिमाइंडर, डिलीट किया, डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। इसको मैम ये कहते हैं ये ऐड ऐड वर्किंग। रिमाइंडर का क्या मतलब है, ऐड रिमाइंडर? ऐड रिमाइंडर का मतलब है जो ऊपर आपने सारी चीजें की हुई है ना, उसको एंड पे आके यहाँ पे ऐड रिमाइंडर पे क्लिक करना है। वो आपकी प्रायोरिटी में किस लिस्ट पे आती है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रायोरिटी है तो हाई हाई आ जाएगा। ओके, कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा लेट भी कर लूँ तो काम चल जाएगा तो मीडियम है। और अगर मैं 2 दिन के बाद कर लूँ तो भी ठीक है, तो वो आपकी लो प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो वो अच्छा प्रायोरिटी ठीक। वाइज आप कह रहे हैं कि आप टास्क को प्रायोरिटाइज कर ले कि आपको कितनी अच्छा अर्जेंसी है उस टास्क को कंप्लीट करने में, ताकि वो जल्दी आपको बता दे। मैम उसके एक बाद और फिर बस, आप ये जी टोटल टास्क ये पेंडिंग है, इसमें कुछ मतलब इसका क्या है? हाँ, इसमें जितने आप टास्क ऐड करते जाएंगे ना, तो आपको बताएगा कि आप टोटल कितने आपने रिमाइंडर लिखे हुए थे कि मैंने ये तो भी मैम करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। वो 5 टास्क जो मैंने आपने यहाँ पे किए। कुछ मतलब अभी करके ना, मैंने यहाँ पे जब ये ऐड रिमाइंडर का ऑप्शन दिया तो आगे में कुछ दे नहीं रहा, उधर ऊपर में कुछ जीरो ही जीरो आ रहा पहले से ही। अच्छा, ये जीरो ही रहेगा ना जब तक नीचे आप ऐड रिमाइंडर पे क्लिक करके इसको ऐड नहीं कर देते, तब तक जीरो ही रहेगा। हाँ मैंने ऐड रिमाइंडर का ऑप्शन दिया था, अभी भी दे रहा हूँ, तो इसको ये वर्क नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, हाँ, तो ये है ना? काम नहीं कर रहा ना। क्लॉड को लिखें कि ऐड रिमाइंडर का बटन जो काम नहीं कर रहा उसको वर्केबल बना दो, तो बना देगा। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, इस तरह से। जी विशाल। विशाल माइक म्यूट है आपका। मैम मैंने लिंक शेयर की है। वहाँ पे उसका ऐप का इंटरफेस शो नहीं हो रहा है, सिर्फ क्लाउड लिखा हुआ है। कभी कभी इंटरफेस भी शो होता है इसे वो करने कोई पे। बात नहीं। वो कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, इसका पता है क्या होता है? आप लोग वेट नहीं करते। ऐसा होता है समटाइम हमारा इंटरनेट स्लो होता है, जिसके बाद आप लिंक पेस्ट करने के बाद एक सिंगल स्पेस दे दिया करें। सिंगल स्पेस के बाद आप थोड़ा सा वेट कर लेना, तो वो आपको आपकी ऐप का इंटरफेस शो कर देता है। और अगर आप विदाउट वेट किए उसको डायरेक्टली पोस्ट कर देंगे, तो वो क्लॉड का ही लिंक देगा आपको कि अच्छा ये क्लॉड है, क्लॉड से आपने बनाया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऐप मिलेगी। ये डिफरेंस है इसमें। ओके। ठीक है। ओके जी। शफीक भाई, आपकी रिमाइंडर ऐप बन गई? कोई मसला आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है? मैम मेरी डिलीट नहीं हो रहा, और अब टाइम भी नहीं है, वापस वो प्रॉम्प्ट लिख भी नहीं सकती। असल में मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन, आज इंटरनेट ज़रा स्लो चल रहा है, तो अदरवाइज अभी बन गया है। मैंने चेक करना है कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है उम्मीद है जी। वर्किंग भी करे। इंशाल्लाह। चलो, सही होगी।
असर भाई आपके ना वीक 2 के डे 1 डे 2 पे ना लिंक्स आपने पेंडिंग लिखे हुए हैं, वो भी जब टाइम मिले ना प्लीज उसमें लिंक्स अपने पोस्ट कर देना। जी सर, इसमें लिंक पोस्ट करने हैं मुझे। नेटवर्क इशू की वजह से मेरे 2 दिन के जो टास्क वो अभी पेंडिंग में है, 2.5 दिन के हैं, वो पेंडिंग में है। जी मैं संडे तक क्लियर कर लूँगा इंशाल्लाह। प्लीज अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे अपने टास्क अपनी प्रेजेंस को शो करते रहें। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। जिनके लिंक्डइन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा वेट कर लें, उनके भी लिए हो जाएगा। लेकिन जिनके लिंक्डइन वर्केबल है वो प्लीज अपने लिंक्डइन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कीजिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके इस काम करने के दौरान शेयर कर रही हूँ। हम हमारे एक पार्टिसिपेंट है टेप्टा के, उन्होंने पहले कभी लिंक्डइन नहीं यूज किया था। इस 2 महीने की ट्रेनिंग में लिंक्डइन उन्होंने बनाया भी और उसको यूज भी किया, एंड नाउ ही गॉट लॉट्स ऑफ इंटरेक्टिव कनेक्शंस फ्रॉम द लिंक्डइन एंड इज सुपर हैप्पी कि अब हिशाम सरवर जैसे इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर तक भी उनको जो है उनके कमेंट सेक्शन में उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कितने एक्टिवली आप हर एक चीज पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिर्फ अपनी ही नहीं आपने प्रेजेंस शो करनी, बल्कि मैंने आपसे कल कहा था ना कि आप दूसरों की जिन जिन कनेक्शंस को ऐड करना चाह रहे हैं ना, उन कनेक्शंस को ऐड करने के बाद आप उनको देखिए, जब तक हमने इंटरव्यू करना था कर लिया, उसके बाद सलाम दुआ के बाद कोई बात ही नहीं। तो ऐसे कनेक्शन को वो डेड समझते हैं। आप उनकी जितनी भी आपके सामने उनकी आपके वॉल पे जितनी भी उनकी पोस्ट गुजरती हैं उन पे कमेंट्स करते रहिए, ताकि आपका उनके साथ कनेक्शन बना रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिकली फिर आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं ना, अच्छा उसने मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों करूं, और ये करते करते हमारा पूरा रिलेशन ही डेड हो जाता है। ठीक है, एक टाइम पे आके हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते और कोई हमारी बात भी नहीं होती सामने से। तो जब इन फॉरनर का को आप ऐसे डेड मिलेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली अपने प्रोफाइल से रिमूव कर देंगे विदाउट एनी नोटिफिकेशन। ठीक है, एक तो पहले हम बड़ी मुश्किल से ऐड होते हैं, फिर अगर वो हमें रिमूव कर देंगे फिर तो और मुश्किल हो जाएगा उनके प्रोफाइल में ऐड होना। जी जावेद भाई। मैम बस एक छोटा सा सवाल है। मैम जैसे ये फेसबुक पे मैंने इसको पोस्ट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक लिंक लिखा हुआ आ रहा है और बस ये अपना ये रिमाइंडर का है, तो मैम इसमें कुछ अलग से ऐड करना है क्या? हाँ जी, अब आप चैट जीपीटी पे जाइए, ये लिंक पहले जी फेसबुक पे लगा लें। लिंक सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है और कुछ नहीं करना। लगा के फिर चैट जीपीटी पे जाइए और चैट जीपीटी को बताइए कि मैंने एक रिमाइंडर ऐप बनाई है क्लॉड एआई के हेल्प से, मुझे अब इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, मुझे डिस्क्रिप्शन दे दो इसकी, वो आपको डिस्क्रिप्शन दे देगी। इसके लिंक जो है ऊपर रहना चाहिए और जो डिस्क्रिप्शन है उसे नीचे आना चाहिए, है ना? ऊपर आना चाहिए उसको। डिस्क्रिप्शन ऊपर आना चाहिए। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन ऊपर आना चाहिए, लिंक नीचे होगा। तो मैम डिस्क्रिप्शन को पहले ऐड करना होगा इधर? हम्म। ठीक है, ओके। ओके जी आसिफ भाई। आसिफ भाई का इंटरनेट फिर लैग करके। ओके पार्टिसिपेंट्स, आज की टेड टॉक जो है वो काफी डिफरेंट भी है और आप सबके लिए काफी हेल्पफुल भी है, रिलेटेड टू एआई एजुकेशन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय डेले लैन। और इनकी टेड टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 16 मिनट्स लॉन्गर है। अगर हम सबने मिलके देखनी है तो हम मिलके देख लेते हैं, अदरवाइज इंटरनेट ग्लिच की वजह से मैं रिकमेंड करूंगी कि सब अपनी अपनी टेड टॉक देख ले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, ताकि आप लोग आराम से अपनी टेड टॉक देख पाए। तो आई शेयर द लिंक इन द जूम चैट, मैंने जूम चैट में लिंक शेयर कर दिया, यू कैन वॉच द टेड टॉक। अब हमारे पास टाइम हो रहा है 55 मिनट्स पास 9 अप्रोक्सिम, तो आप सब वापस ज्वाइन करेंगे हमें एटलीस्ट 10:15 पे। ठीक है, 20 मिनट दे रही हूँ, 16 मिनट्स की टेड टॉक है लेकिन 20 मिनट दे रही है, आप सबको टेड टॉक देके फिर वापस ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, यू गाइस कैन वॉच द टेड टॉक नाउ।
ये मेरा सिस्टम की वजह से स्टक हो गया है या सब कैसी होगी स्क्रीन मिस लुबना? नहीं आसिफ भाई, ये अब वर्किंग में है मेरे ख्याल में, सिस्टम सारा ठीक जा रहा है। ये हमारी क्लास बिल्कुल ठीक चल जा रही है। वो सारे टेड टॉक देखने के लिए मैम ने 20 मिनट्स दिए हैं ना, तो सब इसलिए फेस अपीयर नहीं कर रहे शायद। हर कोई वो अच्छा खुद अच्छा, से, मैम नहीं। ने कहा खुद से देखना है टेड अच्छा, टॉक, पहले ये तो है यहाँ पे लिंक। देखते थे। जी जी, वो कह रहे हैं कि किसी का नेट बीच बीच में से वो हो रहा है ना इशू, तो वो कह रहे हैं हर कोई खुद से देख ले। ओके। है आपके पास या मैं भेजूं? लिंक है मेरे पास। चलें ओके, ठीक है थैंक भाई। यू मैम। नहीं नहीं भाई, इट्स ओके सर।
Okay, participants, the time is 15 minutes past 10 p.m. So please turn on your cameras and then we'll start our review session. Miss Laila, Vishal, Miss Rahat, Naseemullah Bhai, please join back. Thank you. Ishaq Dara, Miss Laila, please turn on your camera. Ji, Miss Rupna, you raise your hand first. जी मैम, इसमें जो सबसे स्पीकर की बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने जो बात की कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे लिए एक सिग्नल्स होती है कि हम अपना रास्ता चेंज कर लें। अगर हमें किसी साइड पे प्रॉब्लम फील हो रही है तो हम अपना रास्ता बदल लें और तो हो सकता है दूसरी साइड पे हमारे लिए कामयाबी हो। इसके अलावा जो स्पीकर की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने हर एक बात के साथ एक मिसाल कोट की है। जैसे उन्होंने कहा है कि हमें लगता है ना कि हम लोग कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि हमें खुद पे यकीन नहीं है। खुद पे यकीन रख के चलना चाहिए तो कामयाब हो जाएंगे। जैसे एक बच्चा कभी ये सोचे कि वो कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करे तो वो बोलना शुरू कर जाएगा। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर कभी हमें ये लगे कि किसी जगह पे स्कूलिंग नहीं हो रही या वहाँ पे स्कूल के मौके कम है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन जाके बहुत सारी चीजें फ्री भी हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज करके भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली चेंज जो है वो हमारे अंदर से आएगा। तो हम लोगों को जो है वो सेल्फ बिलीव करना चाहिए। तो ये मुझे बात अच्छी लगी बहुत इनकी आज। थैंक यू सो वेरी मच। जी आतिफ भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? जी मैम, मुझे जो बात समझ में आई वो ये है कि हमें स्टूडेंट्स को सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं, एआई को सिखाना नहीं चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स को हमें ये चीज़ सिखानी चाहिए कि एआई से सवाल कैसे करना चाहिए, एआई से पूछना कैसे चाहिए, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं शायद। अ, जी जी वही चीज़ें यहाँ। जी सर, जी मैडम। जी जी, जी बस कंटिन्यू ये बिल्कुल आप बात है। भाई। जी मैडम, हमें स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ ये बात नहीं समझानी चाहिए कि एआई को सिर्फ यूज़ कैसे करते हैं, बल्कि उनको ये भी समझाना चाहिए से कि एआई से सवाल कैसे पूछते हैं, एआई को यूज़ कैसे करना है। जी थैंक यू। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। जी ईशान, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? तो मैम यही है कि एआई अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो स्टूडेंट्स को यही चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे लर्न करना है और इसके नुकसानात से कैसे बचना है। अब ये हमारे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि फ्यूचर जॉब्स के लिए और चैलेंजेस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। जी मैं सिर्फ कुछ और कहना है ईशान? नो मैम, काफ़ी। थैंक यू। जी मैं सिर्फ बहुत अच्छी टेड टॉक थी जिसमें उसने जो है ना पीछे से हिस्ट्री से रिलेट करके आगे फ्यूचर तक बात किया। और जो सबसे पहले उसमें कॉन्सेप्ट उसने बार इस्तेमाल किया वो डेमोक्राइजेशन ऑफ एआई है, जिसका मतलब ये है कि हमें जो है एआई के बारे में भी जमहूरियत को अख्तियार करना चाहिए। और जमहूरियत का मतलब होता है हर इंसान को उसका हक दिया जाए। तो एआई जो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान की ज़रूरत है, और उसकी जो भी फील्ड है उसको एआई की ज़रूरत है। और जो उसने जो पीछे से हिस्ट्री रिलेट की है कि पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुए, उससे भी पहले जो था लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा। जब मार्क्स के बाद जो है वो और चीज़ें शुरू हुई। फिर उसने मतलब शॉर्ट करके बताऊंगी अब मैं आपको। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता जो स्कूल हैं उन्होंने अडॉप्ट किया कि भाई ये जो चीज़ें होनी चाहिए, पहले लिखना सीखना चाहिए सबको। फिर उसके बाद किताबें बनना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल उसको अडॉप्ट करते गए। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है उसने ये बताया कि इस तरह कंप्यूटर क्रिएट हुए, तो कंप्यूटर्स को जो है स्कूल ने अडॉप्ट किया। तो पहले जो कंप्यूटर की लैब्स में काम करते थे उन्होंने वाइट कोट पहने होते थे, बड़े साइंटिफिक होते थे, कम लोग होते थे। और जो खुद इस लैब में काम करने वाले लोग होते थे वो ये कहते थे कि हमें इतने कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है, शायद मार्केट में 5 कंप्यूटर चाहिए या 10 लोग चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोच बदल रही है, तो फिर जो है वो चीज़ों को ना डेमोक्राइजेशन की तरफ लेकर आना चाहिए। फिर जो है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुई। फिर यूनिवर्सिटी ने स्कूल ने सबने सिखाना शुरू कर दिया और जो है चीज़ें आगे बढ़ती गई। तो अब इस तरह ये जो एआई है इसको भी जो है आई से सब स्कूल को अडॉप्ट करना चाहिए। उसने यहाँ तक ये बात की। फिर उसने ये बोला कि जो अब स्कूल्स हैं, मैं स्कूल्स में भी काम करता हूँ यही सिखाने के लिए बच्चों को, और मुख्य जगह पर भी। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम खुद बनाएं, अपना एआई असिस्टेंट खुद बनाएं। और उसका पहला स्टेप मैं ये करता हूँ कि उनको कहता हूँ आप ये गेम खेलो।
इस गेम से जो आप जब ये सीखोगे कि आप एआई से कैसे बचोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आप दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, कोरिलेट हो जाओगे आपस में। तो इस तरह बच्चे जो है फिर ऐसा ऐसा अपना एआई असिस्टेंट बनाते हैं, फिर वो उनको प्रॉब्लम्स देता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन जो है वो बच्चे निकालते हैं। फिर इस तरह वो अपने एआई असिस्टेंट में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं। आखिर जो उसकी बात है उस पर एंड करूंगी, वो ये कहता है कि हमें अभी ये नहीं पता कि हम वो जो जनरेशन बना रहे हैं उसमें बच्चे जो है वो एआई के साथ ही बड़े हो रहे हैं। तो इससे पहले कि भाई यानी कि जो है हम इन चीज़ों को ना समझ सके, हमें बच्चों को जो है उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। वो सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हो रहे हैं, तो जब तक हम उनको डेवलप नहीं करेंगे, उनको ये बताएंगे नहीं, तो ये हमारी उनके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। और हमें चाहिए कि जो है हम बच्चों को ये सोशल मीडिया और ये जितने भी ये हैं, उबर हो गया और बाकी जो उसने एग्जाम्पल दिए हैं, उनका यूज़ सिखाएं, ताकि जो है मुनासिब इस्तेमाल और उससे जो फ़ायदा है वो बच्चे उठा सकें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो यही है और हमें नहीं पता कि वो क्या है। थैंक यू मिस सीरम। जी मिस गुलशान, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? मिस मरियम, पहले नंबर पे तो मैं आप सबसे सॉरी बोलूंगी, क्योंकि इस बेचारे डैल लेन को जब मैंने देखा ना, तो उसकी ना बॉडी लैंग्वेज मुझे ऐसी लगी जैसे वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो मैं तो सर्च करने लग गई कि ये बंदा क्या ब्लाइंड है। तो दरमियान में मेरी टेड टॉक छूट गई, मैं उसमें लग गई। और वहां से मतलब मैं ना टेड टॉक जो पूरी सुन नहीं पाई, मैं उसी में लग गई। मैं पहले तो मैं गौर करती रही इस पे, तो मुझे लगा, मुझे कंफर्म ऐसे लग रहा था कि नहीं नहीं यार ये बंदा आंधा है। तो मैं फिर उसमें लग गई, देखने लगी कि वाकई ऐसा तो नहीं है कोई सीन कि उसके साथ इस तरह का सीन, लेकिन बहरहाल वो ऐसा नहीं था। वो ठीक है बंदा। चलिए, ये जितना मैं सुन सकी हूँ उसको, उसमें तो मुझे तो यही समझ है उसने कि आजकल का जो दौर है उसमें कोई भी चीज इस तरह से नहीं है कि जिसने पब्लिश नहीं होना। और कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें जो है जिसने ऑनलाइन नहीं होना। ऑन उसने कहीं ना कहीं उस चीज ने जो भी काम है उसने उसने ऑनलाइन जाना ही जाना है। तो उसने यही कहा है कि हमें एआई जो है ना, एआई जो है इसको इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने कुछ जो हैं वो बच्चों के लिए जो हैं वो मशीन लर्निंग टूल्स बनाए। इसने मैं इसकी सर्च जब वो पढ़ रही थी तो मशीन लर्निंग टूल्स इसने बनाए हैं, और जिसकी मदद से बच्चे जो हैं वो अपनी जो है डेवलपमेंट जो वो बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मैंने इसको इसको सुन सकी कि इसको मैं बहुत ज़्यादा सुन सकती हूँ, लेकिन इतना सा मुझे समझ आया था कि एआई जो है वो टीचर्स की मदद करेगा इस, और बच्चों को ये समझना है कि एआई जो है उसको सिर्फ आपने इस तरह से ये नहीं कि इस्तेमाल करना है, बल्कि एक लिमिट का भी आपको पता होना चाहिए। एक आपने कहाँ तक इसको मतलब वो जो है उसने उसने कहा, कहता कि एआई जो है ना ये बच्चों को क्लासरूम के अंदर जाती लर्निंग देगी। कि एक तो है ना कि जब बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है तो वो टीचर पढ़ा रहा है, तो वो सारे बच्चों के लिए वो एक जो है वो एक जनरल लर्निंग जो है वो चल रही है। लेकिन एआई की मदद से जो बच्चा है वो क्लासरूम में बैठा हुआ अपनी पर्सनल लर्निंग जो है ना वो एआई टूल्स और ये जो बच्चों के जो उसने लर्निंग मशीन के टूल जो है इस तरह से करके उसने बनाए हैं, उनकी मदद से बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट जो वो बहुत बेहतर हो सकती है। मैं तो भी इतना ही सुन सकी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको काफी क्यूरियोसिटी रही और ये भी अच्छा हुआ हमें रिसर्च से पता चल गया कि नहीं, वो फिजिकली इम्पेयर्ड नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। जी मिस लैला, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? जी मैम, in his TED talk, Education in the Age of AI, Dale Lane explain how artificial intelligence is transforming education. He shows how AI can personalize lesson, save teachers' time, and spark creativity. But he also warned that we must teach critical thinking, so students use AI wisely, not blindly. The future of learning will be a balance between human skills and AI support. जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच लैला, थैंक यू सो वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? वालेकुम सलाम।
आज की TEDx टॉक खसूसी तौर पे टीचर्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी। मैं समझता हूँ कि ये इसमें बहुत चीज़ें हैं जो टीचर्स के लिए गाइडलाइन मुहैया कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो यूजुअली जिस तरह हम पहले TEDx टॉक्स देख रहे हैं कि एआई पर बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत पर बात हुई। तो ये जो स्पीकर थे इन्होंने विद एग्जांपल्स तफसील से बयान किया कि किस तरह से 1960s में क्या चेंज आई, फिर 70s में किस तरह से चेंजेस चेंजेस आई। तो टाइम टू टाइम जो चेंजेस आती रही और जिस तरह से जो लोग थे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहे और एजुकेशन में तब्दीली लाते रहे। तो ये आज पाकिस्तान में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें ट्रेडिशनल जो वे है, जो रवायती तरीका तदरीस है, उससे निकल कर हम एआई की तरफ आएँ। जो सबसे बेहतरीन इसमें मैं समझता हूँ बात है, वो एआई के इस्तेमाल जो बच्चे कर रहे हैं, इसके ख़तरात और इखलाकी पहलू जो थे, इस पे इन्होंने जो रोशनी डाली, ये मेरा ख्याल है इस TEDx टॉक की सबसे अहम बात थी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये नहीं समझते कि किसी भी चीज़ जो नई चीज़ है उसका पॉजिटिव यूज़ क्या है, उसका नेगेटिव यूज़ क्या है। तो इस हवाले से इन्होंने कुछ मशवरे भी दिए कि किस तरह से बच्चों के साथ एक डिस्कशन की जाए, मॉडल बनाए जाएं और मतलब उस पे जो एआई के ख़तरात हैं, तासुब जो बच्चों में आ जाता है, राजदारी की बातें हैं, इन चीज़ों पर डिटेल से जो डिस्कशन की है, ये मेरा ख्याल है सबसे अहम जो इस TEDx टॉक की बात थी। तो ओवरऑल इसका खुलासा तो यही है कि वो ज़ोर इसी बात पे दे रहे हैं कि हम रवायती तालीम से निकलें, अपने बच्चों को जो एआई टेक्नोलॉजी है उसके साथ अलाइन करें, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके ख़तरात हैं उनको बताकर और उससे बच्चों को आगाह करके आगे चलें। ये इसका ओवरऑल थीम था। जी। बहुत शुक्रिया शफीक भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज। जी जावेद अली भाई, क्या समझ में आया, क्या सीखा आज की टॉक से आपने? जावेद भाई। जी जावेद भाई, क्या सीखा टॉक से आपने? जी मैम, इसमें जो डेल लेन है उन्होंने बताया मैम, ये जो चैट जीपीटी है ये एक फैंसी टेक्नोलॉजी है। और फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है ये, जो है अब जो है आम बन चुकी है। इसको फैंसी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नहीं माना जाए। और दूसरा मैम इसमें बताया कि ये जो है स्कूल में जो है आम कर दी जाए, जैसे स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल है। प्राइवेट में तो शायद हो सकता है, हो गया हो, लेकिन गवर्नमेंट तो के हालात तो ठीक नहीं है, यहाँ के तो कुछ खास नहीं है। तो उसमें इसको जो है जनरलाइज किया जाए। और मैम इसमें एक बात और बताइए मैम, कि ये जो है सिर्फ इसको लैपटॉप, सिर्फ आदमी को लैपटॉप नहीं, सिर्फ लैपटॉप के नहीं सिखाया जाए, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, इसमें जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, जो स्किल है, जो डेटा जो कमांड देनी होती है वो जरूरी है। कमांड अगर अच्छा रहेगा तो वो जल्दी से आपको जो आंसर है दे देगा, और आपको जो है हल निकल जाएगा मैम। शुक्रिया। सही, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच जावेद भाई। जी आजम भाई, क्या सीखा आज की टॉक से आपने? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, इसके अंदर जो बात हुई है वो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रियल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, उसकी सॉल्विंग के ऊपर जो है ना वो बात हो रही है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स जो है वो लोगों के अंदर जो है वो पैदा करने के ऊपर जो है ना वो जोर दिया जा रहा है कि बेसिकली जो है वो एआई टूल्स जो है वो उसको सीखने की बात यहाँ पे जो है वो नहीं है। ठीक है कि उस वो कोई स्किल मतलब नहीं है। वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक टेम्परेरी आपके पास जो है ना वो एक टूल आ गया कि जी आप उससे कोई काम कर लें। बेसिकली उसकी डेवलपमेंट है फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम जो है वो कुछ ऐसा काम करें कि जिससे जो है वो आपका जो दुनिया है उसके अंदर जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, उनको जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। और ये टोटली जो है वो बात मैम मुझे जो समझ में आई वो ये है मैम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आजम भाई। जी मिस औलत, क्या सीखा आज की टॉक से, क्या समझ में आया?
सोलह आपका माइक म्यूट है। अच्छा मिस वाला जब तक माइक खोलते हैं, सलमान भाई आप बता दें क्या सीखा आज की चैट टॉक से, आपने क्या समझ में आया? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, आज क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? मैम बस थोड़ी बहुत कान में दर्द हुई हुई है, कान में पता नहीं क्या मसला है इसलिए। और मैंने टेड टॉक के रिव्यू से आज ये है कि एआई स्कूल बाहर के मुल्कों में एआई की तालीम दी जा रही है मगर हमारे मुल्कों में नहीं दे, क्योंकि उसने अपनी टेड टॉक में अपने स्कूल का भी जिक्र किया जहाँ पे वो पढ़ाता रहा है। और उसने उनको प्रोग्रामिंग वगैरह वहाँ तक सिखाई है कि वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने आप से खुद गेमें बना सके। वो बस उन्हें प्रोग्राम वगैरह टाइप वगैरह करके दे देता था और उन्होंने खुद उसे वो मतलब ये है कि प्रोग्राम दे दिया है और बच्चे और गेम बना के दे दिया। उसने कहा आप ऐसे ही रिक्रिएट करें, इसके अंदर एनिमेशंस करें और फिर वो ऐसे ही करके गेम्स बनाते हैं। और ये वो एआई जिंदगी में अब ज़रूरी होती जा रही है क्योंकि आजकल जॉब्स टेक ओवर हो रही हैं एआई की वजह से। अब कोडिंग की जॉब क्लॉड एआई ने ले ली है, डिज़ाइनिंग की जॉब कैनवा ने ले ली है और बैंकिंग की जॉब ऑनलाइन बैंकिंग ने ले ली है। अब आपको ऑनलाइन बैंकिंग नहीं आती तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता कैशियर की भी जॉब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो ऐसे ही है आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि 2027-28 के अंदर एक मशीन आ रही है जिसके अंदर आपने बस अपना चेक या कैश वगैरह डिपॉजिट करना है तो वो आपको एक स्लिप निकाल के दे देगा। आपने बस स्लिप को ले जाना है, वो कैश खुद ब खुद आपके अंदर जाएगा। मतलब कैशियर की भी नहीं आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत होगी। मतलब आप कहते नहीं है एक डिजिटल बैंक बन जाएगा कि मतलब आपने एंटर होना है वहां पे कोई भी नहीं होएगा, ना कोई शख्स, ना कोई, सिर्फ आप होगे और वो बैंक। आपने अंदर एंटर होना है, कस्टमर आपको क्या चाहिए आपने ऑनलाइन सारा कुछ करना है और अंदर जाना है और वो आपको सारा जी बैंक डिपॉजिट वगैरह भी जी कर देगा। ऐसा सिस्टम आ गया है। डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ऐसा सिस्टम है। नहीं तो आपकी जो है स्टैंडर्ड चार्टर अकाउंटेंट, स्टैंडर्ड चार्टर जो बैंक है ना, उसके अंदर ये ऐसी मशीन अवेलेबल है एंड दे आर डूइंग इट। क्या आपको डिपॉजिट के लिए भी जी बैंक नहीं बिल्कुल। जाना, आप मशीन के अंदर ही अपना कैश रखें, अपना अमाउंट एंटर करें और वो ऑटोमेटिकली अमाउंट को काउंट करता है और काउंट करने के बाद उसको डिपॉजिट कर देता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। आपको जी परेशान जी होने की बिल्कुल भी ऐसे जरूरत ही। भी कि बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। एंड इट्स देन एंड देयर, वो उसी एक क्लिक पे आपके पास आ जाता है और साथ में एक स्लिप दे देता है कि भैया इतने अकाउंट में पैसे आपके ट्रांसफर होंगे। और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बिल्कुल। चार्टर ये वाली ऑप्शन आपको आई गेस मैं 2019 से इसको ऑब्जर्व करी और ये हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जी जी स्टैंडर्ड चार्टर के जो अकाउंट्स हैं वो बस बहुत लिमिटेड है अभी पाकिस्तान में। मतलब आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब है या आप अगर पर्सनल भी यूज करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है अगर आप अपने पर्सनल के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीनेशनल कंपनी आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ अगर वो कंपनी आपको अलाउ कर दे कि हाँ अब आप स्टैंडर्ड चार्टर का अकाउंट खुलवाएंगे, तो वो आपको बेनिफिट है। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड चार्टर इंटरनेशनल अकाउंट है, पाकिस्तान में भी ऑपरेट होगा और बाहर आप कहीं भी चले जाए वहां पे भी अकाउंट आपको सेम जो है वो आपका ऑटोमेटिक करेंसी कन्वर्ट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान तो में साइबर बाकी सिक्योरिटी का जो इश्यूज है। इंशाल्लाह हाँ ये तो फिर रहता है ना पाकिस्तान के अंदर तो कुछ ज्यादा सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी। एनी हाउ, थैंक यू सो वेरी मच सलमान भाई जी। हमारे पास मिस राहत है। मिस राहत आपने क्या सीखा आज की चैट टॉक से, क्या समझ में आया? मिस राहत कोई नहीं। जी मिस औरत आपका माइक अनम्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा? थम्स अप करके बताइएगा मुझे। आई होप कि अब कोई रह नहीं गया जिसने अभी अपना रिव्यू नहीं दिया। सबका रिव्यू हो गया, मिस राहत और मिस सोलह रह गया, मिस राहत लेफ्ट हो गई।
नो। ओके मिसेस सोलत, ओके। आई होप कि जब मंडे को हम मिले तो बेहतर नोट पे मिले। सो पार्टिसिपेंट्स, आज के आपके ऑलमोस्ट 3 टास्क क्लास में कंप्लीट हो गए। एक टास्क रह गया आपके इंटरव्यूज का, वो आप कल लाइन अप कर लीजिएगा अपने इंटरव्यूज, और कल लाजमी इंटरव्यू कंडक्ट कर ले। जो अगर तो उस टाइटल पे कंडक्ट कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप जेनेरिक भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई चैलेंज है प्लीज मुझे बता दें, अदरवाइज लेट्स सेंड अप द क्लास। और आप अगला आधा घंटा जो है अपने बाकी टास्क कंप्लीट करने में, अपने रिव्यूज बनाने में, अपनी अभी रिव्यूज बना के अपलोड करें। जी आसिफ भाई। मैम मेरे इंटरनेट इशू की वजह से जो है 2-3 दिन के जो है टास्क पेंडिंग में है, 2.5 दिन के, वो इंशाल्लाह संडे तक मैं क्लियर कर लूँगा। ठीक है, आप संडे तक कर लें। जी शाह। मैम आप कल मैं आपको किस टाइम मैसेज करूँ, आप किस टाइम फ्री होंगी? हाँ किस टाइम? 9 बजे मेरी दौरा साहब के साथ मीटिंग है रात में, कल सर है। मैम हाँ दिन के आप टाइम दिन में, अगर आपको टाइम हाँ दिन में आप मुझे 3 बजे बता दें। 3 बजे, ओके मैम। हाँ ठीक है, ओके। नहीं मिस इरम, मैंने नहीं यूज किया, मैं आपकी पोस्ट पढ़ी थी तो मैंने सोचा मैं आप बैठ के संडे को इसको एक्सप्लोर करूंगी या सैटरडे को, तो फिर मैं बताऊंगी इसके बारे में। मैंने नहीं इसको अभी तक यूज किया। जी स्पीक भाई, आपका कोई सवाल है, आपको कुछ कहना है प्लीज? मैंने पूछना था वो जिन बाबा डॉट नेट के हवाले से कोई उसका सोल्यूशन निकला है कि वो बस अब मैनुअल ही हम यूट्यूब पे जाके अपनी जी वीडियोस को असल में वो हमारे जो रेहान साहब हैं उनकी तरफ से वो पेड ही है, अभी उसको फ्री नहीं किया जा रहा। अभी उनसे इस बारे में हमारी बात हुई क्योंकि बहुत सारी चीजें वो और अपनी जो है वो हमसे कम्युनिकेट करी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी इस बात पे बात नहीं हो सकी, उससे मीटिंग नहीं हो सकी। अदरवाइज मैंने दौलत साहब को ये बात बता दी है, और वो कह रहे थे जैसे ही मुझे तो रेहान साहब थोड़े से फ्री नजर आते हैं मैं जरूर इस पे बात करता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल वो बहुत ज्यादा मसरूफ है इस चीज को लेके कि मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग साइड पे आ जाए और कुछ कमाना शुरू कर दे। सर्टन अमाउंट कमाना बहुत जरूरी है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाए और अपनी अपनी फीस खुद पे करे, रादर देन कि उनके पेरेंट्स को पे करनी पड़े। तो वो इस चीज पे ज्यादा फोकस्ड है अभी, इस वजह से। तो जैसे ही उनको मिलेगा इंशाल्लाह जहाँ से वो शायद हमारे लिए कुछ कर सके। मिस मरियम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं फिर आप? जी एक मिनट दीजिएगा। आसिफ भाई आपका कोई सवाल है? जी जी मैडम, मेरा ये सवाल है कि यहाँ मुझे मोस्टली जो टीचर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि हम ये सिस्टम कैसे ज्वाइन करें, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, तो उनको मैं हम्म कैसे गाइड करूँ? उनको गाइड करने के लिए उनको जो एडमिशन मैनेजर हैं जयप्रकाश, उनका नंबर दे दें बस, ओके। ठीक है। उनसे क्या, उनसे कांटेक्ट करिए, वो फिर उनको बता दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। Okay, participants, thank you so very much for joining us today. We'll see you on Monday. Have a very nice weekend with your family, friends, and yourself as well. So take good care of yourself. And a very good news, I just heard today in the morning कि आप सबके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने 1 महीने की छुट्टियां और बढ़ा दी हैं। 1 सितंबर को आपके स्कूल रीओपन होंगे, एंड टिल देन एंजॉय द समर वेकेशन।